লক্ষ্য করছেন প্রচন্ড গরম দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী এই মুহূর্তে বিবেকানন্দ ময়দানে শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমরা জানি না, তবে এই মুহূর্তে मोदी जी जिनका डंका आज भारत में दुनिया में बजता है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनको आज पूरा विश्व सुनते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जिनका है एक परम वैभव भारत, जिनका संकल्प है एक विकसित भारत, जिनकी सोच है एक आत्मनिर्भर भारत, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज शक्ति का पद है, आज महानगरी है, आज माता त्रिपुरा सुंदरी की इस भारतवर्ष की यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम हृदय से स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक सह समस्त আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের চিরাচরিত নিষ্ঠাবান আমাদের প্রধানমন্ত্রী জিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমাদের মাননীয় প্রদেশ সভাপতি পুষ্পস্তবতী আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী জিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমাদের রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে এবং পরম্পরাগতভাবে আমাদের রাজ্যের যে রাজা কিশোর মানিক্য মহারাজার মানিক্য দাদাজি উত্তরিত প্রাসাদের একটি প্রতিকৃতি দিয়ে আমি ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের দুজন প্রার্থী পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে বিপ্লব কুমার দেব এবং পূর্ব ত্রিপুরা থেকে আমাদের যিনি প্রার্থী আমাদের সকলের প্রিয় আদরণীয় বিজয় বর্মন মহোদয়। আমাদের রাজ্যের পরম্পরাগত আমাদের বিপ্লব কুমার দেব জাহাজ দিয়ে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জিকে অনুরোধ করব। রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরাও রয়েছেন। আমরা দেড় ঘন্টা মতো বাকি রয়েছে। আর মাত্র 1.5 ঘন্টা বাকি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কি বলেন উপস্থিত রয়েছে, তার কাছ থেকেই আমরা শুনে নেব দেশের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থী বা ইতিমধ্যে অতীতে কি কি ঘটেছে এবং কি কি করার তার পরিকল্পনা রয়েছে যদি তিনি তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়ে ফেরেন। তার দাবি স্লোগানের দাবি চারশো কি পার। দেখা যাক পরবর্তী সময় কি ঘটে। আমরা অপেক্ষা করে আছি কোন সময় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্য শুরু করবে। আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব। আমি এখন আমাদের রাজ্যে আমাদের সকলে আমি এদিকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ সবাইকে নমস্কার। তিনি বক্তব্য রাখছেন। আসন্ন 18তম লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অবশ্যই আজকে এখানে সামনে রেখে বক্তব্য রাখছেন। ময়দানে যে বিশাল বিজয় সংকল্প সমাবেশ, এই সমাবেশে উপস্থিত আছেন ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, যিনি 2018-তে 35 বছরের বামফ্রন্টের কুশাসন অর্থাৎ খুন সন্ত্রাস ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ থেকে আমাদের ত্রিপুরাবাসীকে উনি মুক্তি দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার নেতৃত্বাধীন সরকার তিনি উনার কারণে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে মাতা ত্রিপুরার সুন্দরী পুণ্যভূমিতে স্বাগত জানাচ্ছি। পাশাপাশি উনাকে কোটি কোটি প্রণাম আমি জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যসভার সদস্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত লোকসভা পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত লোকসভা পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী আমাদের সবার পরিচিত মুখ রাজকন্যা মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মা মহোদয়, তীব্রমুখ পার্টির ফাউন্ডার চেয়ারম্যান মহারাজা প্রত্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়, আইপিএফটি দলের সভাপতি শ্রী প্রেম কুমার রিয়াং মহোদয়,
ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা মাথা এবং মন্ত্রী পরিষদের আমার সতীর্থ গণ, আমার সামনে উপস্থিত বিধায়ক বিধায়িকা এমডিসি এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ, বিশাল সংখ্যায় উপস্থিত কার্যকর্তাগণ ও ত্রিপুরাবাসীগণ ও সাংবাদিক বন্ধুগণ, এই নির্বাচন আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। এই নির্বাচন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে মোদীজিকে আমি বলতে চাই যে মোদীজি, আপনি যেভাবে এই আমাদের এই 31 পলিসির মাধ্যমে আপনাদের শান্তি যখন না থাকবে, ডেভেলপমেন্ট সেটা খুবই ছোট হয় না। আপনার কারণে নর্থ ইস্টে 11টা এই ছিল যে আমাদের একট করেছেন, এবার ত্রিপুরার সাথে একট করে 13টা আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে, সেই একট আমরা করেছি। বন্ধুগণ, আমাদের ত্রিপুরাতে সবাই স্কিমে 1,32,000 জন 1,32,000 বাড়িতে বিনামূল্যে বিদ্যুতের কানেকশন দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা 4.5 লক্ষ মানুষকে ঘর উপহার দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে ত্রিপুরাতে প্রায় 2,50,000 কৃষককে প্রায় 685 কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারতে 5,12 লক্ষ পরিবারকে 13 লক্ষ মানুষের আমাদের সুবিধাগুলি দিয়েছেন। বন্ধুগণ, আমরা দেখেছি জলজীবন মিশনে 3% ছিল, সেটা নদীর কারণে সেটা স্বচ্ছ ভারতে মিশনে আমাদের 96% কাভারেজ এসেছে। সবসময় বল যে এসএনজি গ্রুপ আমাদের ত্রিপুরাতে মোদীর কারণে সেটা সাকসেসফুল হয়েছে। 2007 নাম 4,000 এসএনজি গ্রুপ ছিল, এখন আমাদের ত্রিপুরাতে মোদীজির আশীর্বাদে সেখানে 56,000-এর উপরে এসএনজি গ্রুপ হয়েছে। 83,000-এর উপরে লাখ প্রতিনিধি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এদিকে একটু ঘুরেন দাদা, এদিকে একটু ঘুরেন। ও দাদা, এদিকে একটু ঘুরেন। আমাদের এখানে স্মার্ট সিটি দিয়েছেন। বন্ধুগণ, তাই আমি একটাই নিবেদন রাখবো যে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী এখানে উপস্থিত আছেন, আমি আহ্বান করবো আগামী 19 এপ্রিল আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে শ্রী বিপ্লব কুমার দেবকে এবং আমাদের 7 নম্বর উপনির্বাচনে শ্রী দীপক মজুমদারকে এদিকে একটু ঘুরেন। এই যে দাদা, এদিকে ঘুরেন দাদা, আপনারা এদিকে ঘুরেন একটু। ভারত শক্তিশালী হওয়া এবং ভারত বিশ্ববন্ধু বিশ্ববন্ধু সে ভারত আরো বেশি শক্তিশালী হবে। বন্ধুগণ, আমি এই কথা বলে আমি একটা বড় স্লোগান দেবো, আমার সাথে আপনারা বলবেন যে আপনি ভারত, আপনি ভারত, আপনি ভারত, ফিরে একবার, ফিরে একবার। সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার। গরমটা বেশি না, মেঘটা আরো গরমটা বাড়াইছে। 40 মিনিট দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্য শুরু করেছেন। উপস্থিত সকলের যে উপস্থিতি এতক্ষণ, যার জন্য তারা উপস্থিত হয়েছেন, যে কথা শোনার জন্য তারা অপেক্ষা করে আছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্য শুরু করেছেন। उत्साह नजर आता है। आज हर बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आज नवरात्रि की महानवमी का पवित्र अवसर है। अभी मैं असम में मां कामाख्या की धरती से आया हूँ और अब यहाँ माता त्रिपुरेश्वरी माता मारी के चरणों में
प्रणाम करने का अवसर मिला। भाई बहनों, आज रामनवमी का पवित्र पर्व है। 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया। और हमारा सौभाग्य देखिए, ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी नॉर्थ ईस्ट की पवित्र धरती पर है, जहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले ढूंढती है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। आज देश विकसित त्रिपुरा, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं महाराजा वीर विक्रम किशोर भारती जी और पद्मभूषण गंगा जी जैसे महापुरुषों की धरती त्रिपुरा को प्रणाम करना। मैं सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, त्रिपुरा की जनता का ये समर्पण इस मैदान में जन सैलाब बता रहा है कि त्रिपुरा अब पीछे मुड़कर देखने वाला है। पूरे रास्ते भर जो उमंग उत्साह और जन सैलाब था, वो दिखा रहा है त्रिपुरा का मूल क्या है, देश का मूल क्या है। तारों के श्रद्धा में अवस्था हमारी माता और बहनों का इतना उत्साह ये त्रिपुरा को भरने वालों की नींद उड़ाने वाला त्रिपुरा जो सोच लेता है वो पूरा, और त्रिपुरा ने सोच लिया है। काल के दाम एक बार जो 21वीं सदी के भारत को विकसित बनाने में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका। आजादी के इतने दशकों में कांग्रेस के शासन उस दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं हुआ। और यहाँ त्रिपुरा में तो कम्युनिस्टों का शासन था। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा के लोगों को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट और हमारे त्रिपुरा के बारे में लगातार सोचती है। नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए पॉलिटिक्स का नहीं, प्रेम और प्राथमिकता का विषय है। इसलिए इस क्षेत्र में लोगों के जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, यहाँ की कनेक्टिविटी सुधरे, इस पर बीजेपी सरकार का
विशेष जोर जल जीवन मिशन के तहत त्रिपुरा में 5 लाख से ज्यादा घरों में हमने नल से जल पहुंचाया बिना किसी कट, बिना किसी कमीशन के। त्रिपुरा के 2.5 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि पहुंच रही। हमारी सरकार ने यहाँ त्रिपुरा में 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से आजादी दिलाई। आज जनजातीय समाज के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एक लंबे मॉडल स्कूल जैसे काम भी बीजेपी ही कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, हमारे त्रिपुरा में जहां कुल आबादी ही कुछ लाख है, वहां मोदी के आने से पहले यहाँ लाखों लोग जीवन की जरूरी सुविधाओं से जूझ रहे थे, वंचित थे। ये केवल आपके आशीर्वाद से मोदी के कामों का हिसाब इतना ही नहीं है। जब मैं सारे काम गिनाता हूं, इसका मतलब है ये कांग्रेस और लेफ्ट की विकास विरोधी राजनीति का आईना भी है। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि कैसे त्रिपुरा में पीएम आवास योजना कुछ स्थानीय नियमों में फंस गई। डेफिनेशन ही ऐसा कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी के अपने स्वरोग भूमि को मदद मिले, जो सच्चे लाभार्थियों को मदद न मिले। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ ज्यादा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। उसके कारण कच्चे घर की परिभाषा ऐसी करके रखी थी कि उनके यार दोस्तों को फायदा मिले। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। हमने त्रिपुरा के लिए कच्चे घर की परिभाषा को सच्चे अर्थ में कर दिया और उसका ही नतीजा है कि त्रिपुरा में करीब 3.5 लाख के घर यहाँ के लोगों को मिल सके। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इसका भी बड़ा लाभ मेरे त्रिपुरा के लोगों को मिलेगा। और मैं आपको काम बताता हूं, करोगे करोगे पक्का करोगे? जब आप लोगों से मिलने जाएं और आपको कहीं नजर आए कि कोई है कच्चे घर में रहता है, उसको पक्का घर नहीं मिला है, उनको कह देना मोदी की तरफ से कि मोदी की गारंटी है, ये दूसरे को 3 करोड़ उसको भी मिलेंगे। वादा करके आ जाइए, आप तो वादा ही बेइज्जती करवा लिए, करके आइए। साथियों, इन 10 वर्षों में त्रिपुरा नॉर्थ के विकास के लिए बीजेपी ने जो किया है ना, वो तो बहुत किया है। अभी तो हमें त्रिपुरा को और भी आगे ले जाना है। बीजेपी ने अगले 5 वर्ष का जो संकल्प पत्र पेश किया है, वो त्रिपुरा के लोगों के लिए समृद्धि का काम करेगा। अगले 5 वर्ष हर लाभार्थी को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, ताकि गरीब का जीवन चलता रहे, गरीब के बच्चे भूखे न रहे। ये मोदी की गारंटी है। और एक बहुत बड़ी घोषणा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है
इस घोषणा से सीधा लाभ परिवार के उन लोगों को पहले होगा जिनकी आयु 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल है, मेहनत करके कमाई करते हैं और परिवार में दादा है, दादी है, पिता है, माता है, बुजुर्ग है। मैं उन दोनों के लिए वादा लेकर आया हूं। आपके परिवार में जो 70 साल से ऊपर के हैं, कोई भी हो, त्रिपुरा का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का है और अगर वो बीमार हो जाता है, गंभीर तकलीफ आ जाती है, तो उनके बच्चों को आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मोदी सरकार उनकी उनका इलाज, उनकी दवाई मोदी करेगा और आपको इतने पैसे बचेंगे जो आपके और काम आ जाएंगे और आपके माता पिता की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। ये हमने इस आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ऊपर के सभी महानुभावों के लिए, माताओं बहनों के लिए गारंटी दी है, मुफ्त इलाज मिले। कोई गरीब घर के बुजुर्ग हो, मध्यम वर्ग के हो या उच्च वर्ग के हो, हर बुजुर्ग को बीजेपी आयुष्मान योजना के दायरे में लाए। इसका बहुत बड़ा लाभ त्रिपुरा के लोगों को, यहाँ के बुजुर्गों को, साथियों, त्रिपुरा के विकास के लिए हमारी सरकार ने जिस हीरा मॉडल पर काम किया, मुख्यमंत्री की हीरा मॉडल की चर्चा आज वो स्कीम पूरे देश में चर्चा हो रही है। हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट वे, रेलवे और एयरवे, HIRA। ये मैंने आपसे वायदा किया था और इसे पूरा करके दिखाया। आज त्रिपुरा में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन हाईवे का काम प्रगति कर रहा है। बेस्टन अगरतला बाईपास का काम भी अगले 2-2.5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए 2-3 साल पहले मैत्री सेतु की शुरुआत की गई। एक समय था जब त्रिपुरा में मोबाइल के सिग्नल भी ठीक से नहीं आते थे, लेकिन अब त्रिपुरा में 5G सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो आपका मोबाइल बिल जो आज मोदी के राज में मोबाइल बिल 400-500 रुपये ही आता है, अगर कांग्रेस होती है तो आपका मोबाइल का बिल 3-4 हजार रुपये से कम नहीं आता। ये काम मोदी कर